IMF کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا بجٹ بڑھانے پر اطمینان کا اظہار. بے نظیر کفالت پروگرام کی امداد میں مزید اضافے کی سفارش. IMF کا کہنا ہے بین الاقوامی معیار کے مقابلے میں پروگرام کی رقم کم ہے. صارفین کی قوت خرید برقرار رکھنے کے لیے مراعات میں مناسب اضافہ کیا جا رہا ہے. فنڈ کے بجٹ میں امدادی پروگرامز پر اخراجات میں 20% اضافہ شامل ہے. غیر مشروط نقد امداد کی رقم 13,500 سے بڑھا کر 14,500 روپے کی جائے گی. IMF نے کہا ہے ریئل اسٹیٹ ایجنٹس، قیمتی پتھروں اور دھاتوں کے کاروبار کرنے والوں میں بھی منی لانڈرنگ کی نگرانی کے دائرے میں آئیں گے. قومی جائزہ رپورٹ اپڈیٹ کر کے مارچ 2026 تک جاری کی جائے گی. اینٹی منی لانڈرنگ کا نظام مؤثر بنانے سے مالی نظام بہتر ہوگا. حکومت نے ترسیلات زر میں اضافے کے لیے غیر رسمی ذرائع کی حوصلہ شکنی کی. مالی سال 2025 میں ترسیلات زر میں 26% سالانہ اضافہ ہوا. وزارت خزانہ اعلامیے کے مطابق شوگر سیکٹر میں اصلاحات حکومت پاکستان کا اپنا اقدام ہے. وزیر اعظم آفس نے وزیر توانائی کی سربراہی میں ٹاسک فورس تشکیل دی جو صوبوں کی مشاورت سے سفارشات تیار کر رہی ہے. نیب کی کارکردگی اور خود مختاری میں بہتری پر گزشتہ جائزوں میں اتفاق ہوا. یہ اقدام گورننس اور کرپشن ڈائگنوسٹک رپورٹ سے قبل کا طے شدہ ہے. ہم نے 3 چیزوں کو فوراً کنٹرول کر لیا. اینٹی منی لانڈرنگ، کاؤنٹر فائنانسنگ آف ٹیررزم. ہر پلیٹ فارم کے لیے گو AML رجسٹریشن اور فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ کے ساتھ ڈائریکٹ لنکیجز لازمی ہیں. اونرشپ اور کنٹرول کی ٹرانسپیرنسی. پاکستان نے پہلی بار عالمی ایکسچینجز کے لیے منظم، شفاف اور عالمی معیار کا راستہ کھول دیا. وزیر اعظم کے معاون خصوصی بلال بن ثاقب کہتے ہیں بائنانس HTX کو NOC کا اجرا نئی سوچ کا عملی قدم ہے. یہ اقدام نئی سوچ کی عکاسی اور ادارہ جاتی تبدیلی ہے. فریم ورک کے تحت اینٹی منی لانڈرنگ، دہشت گردی کی مالی معاونت کی نگرانی ممکن ہوگی. پاکستان میں 3 سے 4 کروڑ کرپٹو صارفین ہیں. پاکستان کا شمار کرپٹو اپنانے والے 3 ممالک میں ہوتا ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ابوظہبی میں برطانوی اہم منصب سے ملاقات. پاکستان برطانیہ تعلقات اور عالمی امور پر تبادلہ خیال. اسحاق ڈار پولینڈ کے نائب وزیر اعظم سے بھی ملے. نائب وزیر اعظم نے مصر اور آذربائیجان کے وزراء خارجہ سے بھی ملاقات کی. تعلقات مزید مضبوط بنانے اور مشترکہ امور پر بات چیت ہوئی. اسحاق ڈار سر بنی یاس فورم میں شرکت کے لیے ابوظہبی میں موجود ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا ملیر کینٹ سے نمائش تک ریڈ لائن منصوبے کا دورہ. بریفنگ کے دوران بتایا گیا ریڈ لائن کے فیز 1 کی تعمیراتی مدت ابتدائی طور پر 2 سال جبکہ نظر ثانی کے بعد یہ مدت 4.5 سال مقرر کی گئی. فیز 2 کی مدت 6 سال مقرر ہے. کام کا آغاز مئی 2022 میں ہوا تھا. وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا ریڈ لائن سندھ حکومت کا اہم اور اسٹریٹجک منصوبہ ہے. وزیر اعلیٰ سندھ نے شاہراہ بھٹو کے کورنگی کاز وے برج جنکشن منصوبے کا بھی دورہ کیا. کہا ملی ندی میں ہونے کے باعث کاز وے ہمیشہ دوران برسات ڈوب جاتا ہے. اب شہریوں کو ٹریفک کی روانی میں مشکلات نہیں ہوں گی. کام پیپلز پارٹی کرتی ہے، فیتا کاٹنے جماعت اسلامی والے پہنچ جاتے ہیں. ضلع بستی کے ٹاؤن جماعت اسلامی کے پاس ہیں لیکن کام صفر ہے. حافظ نعیم UC چیئرمین بننے کے بعد لاہور چلے گئے. نارتھ ناظم آباد میں 10 کروڑ کی لاگت سے گلیاں پیپلز پارٹی نے بنائیں. میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں جماعت اسلامی بتائے روڈ کٹنگ کے 14 کروڑ کب خرچ کریں گے. کام نہیں کرنا تو گھر جائیں. پیپلز پارٹی بتائے گی کام کیسے ہوتا ہے. شہر منافقت سے نہیں کام سے چلے گا. ان فرشتوں کو ایسا بے نقاب کروں گا کہ لگ پتہ جائے گا. مرتضی وہاب کا کہنا تھا ریڈ لائن سے متعلق مشکلات حل کر لی گئی ہیں. جلد اچھی خبر ملے گی. کام تیزی سے ہوگا. MKM کا شہری مسائل کے حل کے لیے کراچی بچاؤ مہم شروع کرنے کا اعلان. سیاسی اور مذہبی جماعتوں سمیت تمام شعبہ زندگی کے لوگوں سے رابطہ کیا جائے گا. MKM کا کہنا ہے ہر اس جماعت سے بات کی جائے گی جو کراچی کا درد رکھتی ہے. ہر اس سماجی تنظیم سے مشاورت کریں گے جو شہر کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتی ہے.
ऑफ गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा बाइख्तियार होना चाहिए वो शहरी हुकूमत या बल्दियाती हुकूमत है, लेकिन उसको सबसे ज्यादा कमजोर करके ये हुकूमतें रखती हैं। अव्वल तो बल्दियात के इंतखाबात न कराए जाएं, और अगर करवाए जाएं तो लूला लंगड़ा अंधा बहरा और काला कानून, जिस तरह पंजाब हुकूमत ने ये काला कानून मुसल्लत किया है हमारे ऊपर। पंजाब में काला कानून मुसल्लत है। खानदानी सियासत ने बल्दियाती निज़ाम को कमजोर करके रख दिया। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर्रहमान कहते हैं सिंध हुकूमत ने तमाम इदारों पर कब्जा किया हुआ है। सूबाई हुकूमतें एक दूसरे के गलत कामों की नकल करती हैं। सिंध ने भारी चालान शुरू किया तो पंजाब ने भी तकलीफ शुरू कर दी। हुक्मरानों का चालान कौन करेगा? सस्ती और मयारी अशिया का हुसूल पंजाब के आवाम का हक है। सहूलत बाजार अथॉरिटी ने अशिया की सस्ते दामों फराहमी यकीनी बनाकर काबिल कदर अवामी खिदमत सर अंजाम दी। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी के आलमी सर्टिफिकेशन पर इजहार मुसर्रत और मुबारकबाद। कहा, पंजाब में सस्ती रोटी और सस्ता आटा आवाम के लिए एहसास का नाकाबिले तरदीद सबूत है। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत वर्ल्ड बैंक के ताउन से जारी मनसूबों से मुताल्लिक़ इजलास। 200 मिलियन अमरीकी डॉलर मालियत के मनसूबे पर पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। ब्रीफिंग के दौरान बताया गया गैर मुल्की माली मुआवनत से जारी तमाम मनसूबे मुकर्ररा टाइमलाइंस के मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं। मरियम औरंगज़ेब ने कहा, मरियम नवाज का विजन पंजाब को जदीद दुनिया का मिसाली सूबा बनाना है। सिंध असेंबली की नशिस्त PS9 शिकारपुर पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी। नशिस्त साबिक स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी के इंतकाल पर खाली हुई थी। इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के शहबाज दुरानी और JUI के रशीदुल्लाह अमरोटी मद्दे मुकाबिल हैं। फैज़ हमीद को सज़ा। पाकिस्तान में नए बाब का आगाज़ है। 9 मई और फौरन फंडिंग वालों का भी एहतसाब ज़रूरी है। मुल्क की मुखालिफत करने वालों की अब पाकिस्तान में कोई जगह नहीं। भारत के हिमायतियों को भी पकड़ने का वक्त आ गया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मशहूद कहते हैं, भारत और इसराइल के चंद आलाकार पाकिस्तान के अमन को ख़राब करना चाहते हैं। पाकिस्तान के दिफा के लिए कहा, हम सिपा सालार के हाथ पर बैत करते हैं। आप जाएं, जाकर मोदी के साथ बैत कर लें। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी का तकरीब से खिताब। कुछ लोग रोजाना झूठ बोलते और कौम को गुमराह करते हैं। सोशल मीडिया पर बैठे चंद लोग चाहते हैं पाकिस्तान की पॉलिसियां उनके मुताबिक बनाई जाए। फौज और सलामती इदारों के खिलाफ कोई मुहिम कबूल नहीं करेंगे। किसी को अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की इजाजत नहीं दी जा सकती। लाखों और अब्दुस्मत काठियावाड़ी के नेटवर्क चलाने वाले 3 हाई प्रोफाइल मरकजी मुल्जमान समेत 9 मुल्जमान को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 3 शूटर्स भी हैं। शहर में भत्ते का बड़ा नेटवर्क चलाने में दीगर गिरोह और मुल्जमान के अलावा इंतहाई मतलूब मुल्जमान लाखों और अब्दुस्मत काठियावाड़ा मुलविस। कराची के इलाके नाज़िमाबाद से इंतहाई मतलूब 3 मुल्जमान समेत 9 मुल्जमान गिरफ्तार। SSP डॉक्टर इमरान का कहना है, भत्ता खोर रेहान की निशानदही पर कादरी हाउस पर छापा मारा। भत्ते का बड़ा नेटवर्क चलाने वाले वसीउल्लाह लाखू और अब्दुस्समद काठियावाड़ी को भी गिरफ्तार किया। शुएब ताहिर समेत 3 सहूलतकार भी गिरफ्तार किए गए। 8 मुल्जमान का साबिका क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है। $1500 1600 फुट लगा रहे हैं उसको। अभी आगे चलने की उसमें खुदाई की गुंजाइश भी नहीं होता है। अगर यही हाल रहा, साल 2 साल के बाद लोगों को पानी पीने के लिए भी मुश्किल मौसर हो। बलोचिस्तान खुश्क साली की लपेट में। कोयटा, रख्शान और मकरान डिवीजन में सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ गंभीर होने लगी। माहिरीन लाखों नफूस की आबादी वाले शहर कोयटा में तेहरान जैसी सूरत हाल का खदशा जाहिर कर रहे हैं। साहिल पर वाक़ शहर गवादर को पानी की शदीद किल्लत का सामना है। तशवीशनाक सूरत हाल पर जमींदार परेशान। पानी की किल्लत और खुराक की कमी से जानवरों की अमवात। चमन और गिरदोनवाह में डैम खुश्क हो गए। सूबाई वजीर अब्दुर्रहमान खेतरान कहते हैं, बलोचिस्तान इस वक्त शदीद कुदरती आफत की लपेट में है। कोशिश कर रहे हैं महदूद वसाइल में रहते हुए लोगों को पानी दें। NDMA के मुताबिक बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। अंडर 19 एशिया कप में भारत का पाकिस्तान को 241 रन का हदफ। भारत के एरन जॉर्ज 85 रन बनाकर नुमाया।
मोहम्मद सयाम और अब्दुल सुबहान की 3-3 विकेटें। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। बारिश के बायस मैच को 49 ओवर्स तक महदूद किया गया है। पाकिस्तान सुपर लीग के लंदन के बाद न्यूयॉर्क में भी चर्चे। न्यूयॉर्क में खुसूसी तकरीब, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी, साबिक कप्तान वसीम अकरम, रमीज राजा, टेस्ट कप्तान शान मसूद, T20 कप्तान सलमान आगा, सऊद शकील, साइम अयूब, फहीम अशरफ और अबरार अहमद की शिरकत। गुलकार अली जफर ने रोड शो में आवाज का जादू जगाया। शाकीन क्रिकेट के लिए PSL की चमचमाती ट्रॉफी आज टाइम्स स्क्वायर ले जाई जाएगी। मुल्क के शुमाली और बालाई इलाकों में आज से 18 दिसंबर तक बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। NDMA के मुताबिक बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कोहिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। मगरबी हवाओं का सिलसिला शुमाली और मगरबी इलाकों पर असरअंदाज होगा। लाहौर में बीवी और बेटी के कत्ल में मुलव्वस DSP ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। मुल्ज़िम उस्मान हैदर ने एतराफ़ किया उसने बीवी की लाश खुबुरा टोल प्लाजा और बेटी की लाश कहना नाले में फेंकी। पुलिस का कहना है पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे दोनों को फायर लगना साबित हुआ है। मुल्क भर में इस साल की आखिरी कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़ कल से होगा। 4 करोड़ 50 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए जाएंगे। इंसदादे पोलियो मुहिम 21 दिसंबर तक जारी रहेगी। अमरीकी रियासत रोड आइलैंड की ब्राउन यूनिवर्सिटी के कैंपस में फायरिंग, 2 अफराद हलाक, 9 जख्मी। खबर एजेंसी के मुताबिक फायरिंग इंजीनियरिंग बिल्डिंग में की गई। हमला आवर की तलाश जारी है। अमेरिका के तालीमी इदारों में फायरिंग का ये 70वां वाक़या है। इसराइली फौज की जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ, गजा में ड्रोन हमला, 4 फलस्तीनी शहीद, 25 जख्मी। इसराइली फौज का हमास रहनुमा रायद साद को शहीद करने का दावा। हमास की इसराइली ड्रोन हमले की मजम्मत, रहनुमा की शहादत की तस्दीक नहीं की। कराची सी व्यू डिफेंस फेज 8 पर हाफ मैराथन का इनकाद, 2000 से ज्यादा अफराद की शिरकत। मैराथन में एथलीट्स, शोबिज़ स्टार्स और गैर मुल्की भी शरीक हुए। मक्सी डेजर्ट जीप रैली का फाइनल राउंड, जाफर खान मक्सी ने मुकर्ररा फासला 1 घंटा 47 मिनट में पूरा किया। नादिर खान मक्सी ने यह फासला 1 घंटा 47 मिनट में तय किया। साहिबजादा सुल्तान ने ट्रैक 2 घंटे 6 मिनट में मुकम्मल किया। बी कैटेगरी में नोमान सरंजाम ने ट्रैक 1 घंटा 58 मिनट में मुकम्मल किया। नामवर रेसर फैसल शादी खेल की गाड़ी ट्रैक पर खराब हो गई। और सादा ज़बान, अछूता अंदाज, कमाल बर्जिस्तगी, मुनफरिद असलूब के शायर जॉन एलिया का यौम पैदाइश। अंग्रेज़ी, अरबी, अबरानी और फ़ारसी में भी अबूर हासिल था। जॉन एलिया ने पहला शेर सिर्फ 8 साल की उम्र में कहा।